He is a writer, business turnaround coach. He has written 2 books. He is into profitability coaching as well. A Kashmiri Pandit who is, of course, an engineer by education. Thank you so much, Pandita Saab. So please tell us कि आप कहाँ पैदा हुए और कैसा माहौल था घर पे कौन कौन था, आपकी स्कूलिंग. फिर हम इंजीनियरिंग पे चलेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग करना हमारा धर्म है. Thank you so much, Ankur. I think this is a pleasure. This is my first podcast, and that too with a Kashmiri Pandit podcaster. So thank you very much, and congratulations for this great start you have begun with. मैं जम्मू में पैदा हुआ हूँ. मैं कश्मीर में पैदा नहीं हुआ. मेरी फैमिली जो है वो 1967 में जम्मू में आए और उसके कारण बहुत सारे थे. मेरे जो ग्रैंडफादर थे, he had a fall in Srinagar at his place in Wakura village. Wakura. Fall as in? He fell from 3rd floor. Oh, like that. Yeah. Okay. So that is the history, because I've not seen my grandfather. I was just 4 days old when he expired, when we lost him. That's what the story I have heard from my father. तो 1967 में उनको मेरे अंकल, जो बड़े अंकल थे, जो आर्मी में थे, वो उनको जम्मू लेके आए और जम्मू में उनका इलाज हुआ. वहाँ पे वो लोग आए और उसके बाद मेरे फादर जो थे वो एक्चुअली एक टीचर, रामबन में टीचर की जॉब उन्होंने करी. That was because he was just 22 years old after doing his basic studies. उसके बाद 1971, 19th February, I was born in a place in Jammu called Bakshinagar. Okay. Yeah, so that's my birthplace. And then हम लोग that time we used to live in Talab Tilo as a joint family with my uncle. And I was just about 6 years old when we got separated from, the joint family. 2 brothers separated. Bjorn Brai. And then my father was a government employee. He was with Department of Telecom, BSNL, later. And we actually moved to Kachi Chhavni, very close to, in front of जम्मू में कच्ची छावनी में एक्सचेंज है. वहाँ पे उनका जॉब था, वहाँ पे वो जॉब करते थे. तो वहाँ से वो तालाब तलो से हम यहाँ पे आए और फिर वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे. एंड आई रिमेंबर दोज days of my childhood where my father was only bread earner, and he left his home with his elder brother because I was in love with my uncle. He was like my grandfather. Yeah. And but then we had our own struggles. We come from a very humble family. As I said, that my father, when he was separated from his brother, and when we moved to another place in Jammu, so his salary was about 400 rupees that time, 375, 400 rupees. That's what I have heard. In fact, हमारा जो पहला पंखा था, वहाँ पे वो भी रेंट पे था. Yeah. Like the ceiling fan. The ceiling fan. वो भी रेंट पे होता था. वो रेंट पे होता था. Okay. This is the struggle, which I think every middle class and lower middle class families they go through. But those days, that's my history, that's my background. I remember when I was very small, first and second class of my academic years, I actually studied in a government school in Rapport. Okay. That was just before LAR in the district Gandarbal itself. So my mamaji was a teacher. My both mamas were teacher. Okay. And he took me there and got me admitted there. And I have lived that life. So that is my childhood memories I have. I was the star in the government school. Yeah. I was the only guy in that school who had a terracotta shirt and a half pant, khaki half pant and blue shirt. I still remember those days when I used to go with my mamaji on cycle, and he put especially a small seat on his cycle, and he used to take me to school, and it was really fun. We used to have our food in the fields in Sanzre, Sanzar, and that those fields, beautiful fields were there, and I have those memories with me.
1989 till 89, I did my 12th, finished my 12th, and then I moved to engineering. So that's my brief background, Okay. childhood background. Yeah, Okay. So आपने 89 में 12th किया. 89, Okay. So 90 में Exodus हुआ. 90 minutes or so. Okay, let's talk about you were not in Kashmir, you were in Jammu at that time, Yes. 12th में. So what kind of information you had at that time जम्मू में Exodus को लेके? मैं 2 इंसिडेंट आपको बताऊंगा. पहला इंसिडेंट ये है कि 1989 में बिकॉज जब एक्सोडस हुआ, एक्चुअली इट हैपेंड इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी 1990. Jan 19th. Jan 90. Yeah. That's the first Exodus day. हमारा बेसिकली इतने सारे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स है ना इसको लेके कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ सिंगल डेट. लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थियरी दैट इट स्टार्टेड इन 85-86 ओनली, बट देन पीपल वी डिडंट रियलाइज एंड वी वर नाइव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. सबको पता था लेकिन सब वो देखे थे कि चल ठीक है, क्या करे, जब तक 90 तक चीजें इतनी पीक पे आ गई कि तब जाके लोगों को लगा कि नहीं भैया अब यहाँ रहना मुश्किल है. देन नाउ वी हैव टू मूव आउट ऑफ दिस प्लेस. सो दैट टाइम वाज कॉल्ड एक्सोडस, बट इट स्टार्टेड बैक इन 85-86. We all बहुत know सारी that. चीजें We- थी है we ना, all know that. बट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को. नहीं, कोई ना कोई देखिए एक दिन तो हमें उसको याद के तौर पे हाँ. we have to remember that day and हाँ. that black night, we हाँ. call this as. तो वो 19th जनवरी जनवरी है. 1990 है. लेकिन जब मैं 1989 में जब मैंने 12th किया तो मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र में था. मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका था. फर्स्ट सेमेस्टर जब मेरा खत्म हुआ, दैट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, तो मेरी कजन सिस्टर्स की शादी थी कश्मीर में. Kashmir. Those 5-6 days we were there. That time, the whole episode started. So I have a real time experience of those nights when we were doing the preparation for the marriage, and this thing happened, and we thought that nothing is going to happen. और वहाँ पे एक गेस्ट कंट्रोल सिस्टम चलता था शादी में. गेस्ट कंट्रोल सिस्टम बोलते थे उसको, कि 50 लोग ही आएंगे लड़की की शादी में. बारात जो है वो 50 लोगों से ऊपर नहीं आएगी. तो गेस्ट कंट्रोल बोलते थे उसको. तो जस्ट टू लोअर द बर्डन, लोअर द बर्डन. लड़की के घर वालों पे कम. नहीं, नॉट दैट. फिर क्योंकि मिलिटेंसी स्टार्ट हो चुकी थी. तो एक जगह पे, जैसे कोरोना में आप एक जगह सब लोग नहीं मिल सकते थे, वैसे ही ज्यादा लोग एक जगह नहीं मिल सके या एक जगह ज्यादा गैदरिंग ना हो, तो गवर्नमेंट ने वहां पे, गवर्नर ने उस टाइम पे गेस्ट कंट्रोल एक लाइक ये रूल था. ये रूल था. मुझे आज तक किसी इतने ने- लोगों के साथ बात किया हूं मैं, किसी ने ये बात नहीं because I'm little senior enough, from the हाँ. other people you might have heard, in that context. हाँ, हाँ. बट क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1989 में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो रियल टाइम एक्सपीरियंस था. क्योंकि हमें ये भी पता था कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा किया गया था, हाँ. वो उसी रात को हुआ था जिसके सेकेंड डे हम पहुंचे और सेकेंड डे वो हुआ. और हमें ये लग रहा था कि अब शादी नहीं होगी, समथिंग इज वर्स्ट इज हैपनिंग आउट देयर, नाउ द मैरिज इज नॉट गोइंग टू हैपन. But somehow, because the local Muslims and local Kashmiri Pandits, because Exodus nahi hua tha, practically everybody was there, so it was easier for my auntie and my uncle to finish that marriage. और वो marriage हमने attend करके, and then we came back to. But जैसे ही 1990 में Exodus हुआ, because मैं अब शादी attend करके मैं वापस college गया, I went back to college in Aurangabad. I used to study there. So मैं हॉस्टल में था. मैं 1 साल हॉस्टल में रहा हूं अपने. और हॉस्टल में जब ये एक्सोडस हुआ जनवरी में, और फरवरी में कुछ रिपोर्टर्स मेरे कैंपस में आए और मेरे रूम में आए, क्योंकि उन्होंने ये पता किया कि इस कैंपस में कितने कश्मीरी पंडित बच्चे इस साल एडमिशन लिया हुआ है. सो आई वाज वन ऑफ देम, एंड देयर वर 2 more कश्मीरी पंडित्स, माय कलीग्स, माय बैचमेट्स also from Kashmir. तो बट ये लोग मेरे पास आए. लोकमत टाइम्स वहां पे एक बहुत फेमस डेली न्यूज़पेपर है, अभी भी चल रहा है. अभी भी चल रहा है. तो वो लोग आए, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने वो जो आर्टिकल है वो पब्लिश किया. या और वो मराठी में था.
So I got interested to learn Marathi from there, by the way. तो उसमें उन्होंने मेरी स्टोरी ये लिखी कि मैं भी एक माइग्रेंट हूँ, मैं भी एक एक्सोडस से आया हुआ आदमी हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी उस एक्सोडस से अलग नहीं माना, क्योंकि मैं तब तक एक अडल्ट हो चुका था, मेरे को समझ में आ गया था. तो मैंने कोई स्टोरी कवर करने के लिए ये नहीं बोला उस आदमी को कि मैं कश्मीर में पैदा नहीं हुआ. आई वॉज एज गुड एज कश्मीरी पंडित एज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर. सो आई टोल्ड हिम कि बॉस हम भी आए हैं वहां से, क्योंकि मैं एक्चुअली 3 महीने पहले श्रीनगर से आया था. सो दैट वाज इन माई सबकॉन्शियस माइंड. तो मैंने उनको जो स्टोरी बताई तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उसमें एक आर्टिकल लिखा, एंड आई समहाउ बिकेम विद माई नेम एंड ऑल विद द हेडलाइन. कटिंग मेरे पास बहुत देर तक थी. आई बिकेम वेरी फेमस इन माई college. And I became class representative in my second semester for next 1 year. अच्छा. So what I'm trying to say is that हमारी कश्मीर के साथ बहुत यादें हैं. हम चाहे वहाँ पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं, it doesn't matter, because we are Kashmiris. The blood flows in our veins, and we also feel the same pain for those people who used to be at our home for 4 to 5 years. A lot of my cousin brothers, a lot of my relatives. My father actually arranged rented accommodations for them. They used to be. हमारे घर में तो तांता लगा रहता था. हाँ, वो सबकी कहानी. क्योंकि सब लोग हमारे यहाँ आते थे, and we used to feel really sad about the whole scenario. So that is the memory I have with me. But yes, that is what my experience about Exodus is all about. So, काफी लोगों से बात करके मुझे ये समझ में आया, आप पहले बंदे हो जिसने बोला कि कोई अखबार वाला या कोई भी पार्ट ऑफ मीडिया वाज अवेयर और हैड गट्स टू टॉक अबाउट दिस. उस टाइम पे दूरदर्शन पे ताला लग चुका था, ओवरटेकन बाय मिलिटेंट्स, और रेडियो पे ताला लग चुका था, ओवरटेकन बाय मिलिटेंट्स, और बाहर की मीडिया तो वैसे इंटरेस्टेड नहीं थी हमारे वहां पे कवर करने के लिए. सो देयर वाज लिटरली नो आउटकम ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कश्मीर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. लेकिन आप बोल रहे हो कि आपके पास आए तो इट्स लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो आए होंगे, बट मेजरली कोई ऐसा कवरेज नहीं था. मीडिया में कोई ऐसी खबर नहीं थी. लेकिन कुछ ऐसे न्यूज पेपर के कुछ लोग ऐसे, क्योंकि देखिए हर एक प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं, दे आर माइंड मैपर्स, दे नो, बिकॉज वो चीजों पे खबर रखते हैं, वो नजर रखते हैं. हाँ. और फिर खबर बनाते हैं. हाँ. तो उनमें से लोकमत टाइम्स भी था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बच्चे जो थे वो नॉर्थ से जाते थे, क्योंकि कॉलेजेस बहुत लिमिटेड थे. तो बहुत सारे लोग करते थे. तो जब उनको पता लगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट आउटबर्स्ट वाज टू गो टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. सो आई वाज वन ऑफ देम, एंड आई हैड that cutting for long period of time with me. So I used to really feel about it. Okay, so हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे, but that will be a separate section जिसमें इन डेप्थ बात होगी. Let's come back to your college. आपने इंजीनियरिंग किस ब्रांच में करी थी? मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करी है. And what is production engineering? Production engineering is about productivity. It's not about production. There are two different things. Yeah. Mechanical को मैं बोलता हूँ कि mechanical engineering is actually mechanical. Yeah. It's more technical. Right. So somehow मेरा bent of mind जो था वो ज़्यादा quality और productivity की तरफ था, और I made a career out of it later. So there's a lot of difference between theoretical classes and practical knowledge which you get in the, and there's a lot of difference in that. वो भी एक point था डिस्कशन का कि हम आज भी, ये तो आप 90s की बात कर रहे होगे, कि किस साल में आप इंजीनियरिंग खत्म की थी आपने? 93 में. अब मुझे लगता है आज भी नाउ दैट आवर कंट्री हैज लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लेकिन अभी भी जो प्रोडक्ट निकलते हैं वहां से, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स निकलते हैं, like 70-80% people are not employable at all. So anyways, there's a lot of difference in college padhai and what industry requires. Absolutely. There's a lot of difference. There's a gap. There's a huge gap. Academy and industry gap is still there. Yes. But now because of technology and all, it is bridging now. Still it'll take time. Yeah. तो आपने टोटल 3.5 साल काम किया है, राइट? 3-3.5 साल काम किया. 3.5 साल में आपकी शादी हो गई थी उस टाइम? नहीं हुई थी. सो 3.5 साल में आप ये समझ गए कि भैया मुझे अब अपना काम करना है कुछ. एक्चुअली मैं जब पुणे में था तो मेरे पेरेंट्स आए थे वहां पे. तो जब मेरी मदर ने मेरे को नाइट शिफ्ट करते हुए देखा, जब मैं मॉर्निंग में घर आता था सुबह 6 बजे, सो आई यूज्ड टू हैव ब्लिस्टर्स ऑन माय फीट, क्योंकि मैं फोर्जिंग इंडस्ट्री में, एक हॉट मेटल फोर्जिंग में 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता था.
मैं बेशे हैमर, जर्मन हैमर खुद चलाता था। तो ब्लिस्टर्स होते थे नाइट शिफ्ट में, क्योंकि हमारा जो सेफ्टी शू होता था उसमें ब्लिस्टर्स होते थे। वी आर कश्मीरीज ना, वी आर वेरी सॉफ्ट स्किन। सो हमें जब वो एक्सपीरियंस हुआ तो माय मदर somehow there was a discussion in the family and they said, no, you come back because Pune is too far. You come back to Delhi. And then I moved to Delhi. I was jobless for almost 3-4 months here. I have done very odd jobs in Delhi. Like I've sold Newlon oil, additive oil on the roads of Nehru Place and Ashram. That was also one of the things. But जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 3.5 साल में, क्योंकि मेरा जो सेकंड जॉब था वो हीरो होंडा में था, हीरो होंडा के एक एंसिलरी में मेरे को डिप्यूट किया। वहां से फिर मैं एक थर्ड कंपनी में गया। सो माय लास्ट जॉब वाज माय थर्ड कंपनी एंड इन 3.5 years I realized that I cannot be one of the boys in the crowd. That was my inner calling. And it so happened that in third job when I was there, I was into परचेज डिपार्टमेंट। इसको हम बोलते हैं सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जिसमें आप अपने वेंडर्स को सिलेक्ट करते हैं, उनकी कॉस्टिंग करते हैं और आप उनको ऑनबोर्ड करते हैं वेंडर्स को। तो मुझे वो काम मिला था और मेरे जो बॉस थे, इमीडिएट बॉस थे, ही वाज माय फर्स्ट मेंटोर। आई वुड कॉल हिम माय फर्स्ट मेंटोर, मिस्टर एस भट्टाचार्य। ही वाज फ्रॉम IIT Roorkee. So he was my immediate boss. So he found something in me and he used to give me some challenging jobs. तो वहां से फिर मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि मेरे जो सप्लायर्स थे, ये मैं हर जगह बोलता हूँ और यहाँ भी मैं एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने सवाल पूछा है अंकुर, कि जब मैं जॉब कर रहा था तो बिकॉज आई यूज्ड टू ऑनबोर्ड दीज पीपल, आई यूज्ड टू क्वालिफाई देम, मैं प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग करता था। तो मैंने ये देखा कि प्राइस और क्वालिटी में बहुत वॉर है और मेरे जो वेंडर्स हैं वो इतनी गंदी जगह पे अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, स्मॉल माइक्रो यूनिट चलाते हैं। तो आई यूज्ड टू फील रियली बैड अबाउट इट, बिकॉज आई यूज्ड टू आस्क माय बॉस का बॉस, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, व्हाट इज दिस, व्हाई आर वी नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ दीज वेंडर्स, व्हाई आर वी नॉट वर्किंग विद देम टू, बिकॉज हम एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, हम एक मल्टीनेशनल SME है इंडिया में, तो हम इन लोगों से ऐसा काम जो हम कंपोनेंट्स लेते हैं तो हम इनको क्यों नहीं अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने या ट्रेनिंग देते हैं या इनको करते हैं। तो देयर वाज नो आंसर टू माय क्वेरीज, बिकॉज़ दे वर टेलिंग मी, भाई तुम जॉब कर रहे हो, तुम जॉब करो, दैट्स योर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डोंट गेट इनटू दिस। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑलमोस्ट 6 months मैंने अपने सप्लायर्स के यहाँ पे उनको, मैं वीकेंड पे आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, जिसको आजकल हम मून लाइटिंग बोलते हैं। तो वो मैंने किया एंड फ्रॉम देयर आई डिसाइडेड वन डे दैट आई हैव टू हेल्प देम देन माय कंपनी ओनर। सो आई जस्ट क्विट एंड मेरे से इंस्पायर होके मेरे बॉस ने मेरे को ज्वाइन किया। अच्छा, he never had even imagined that he'd get into entrepreneurship. Then he got out of that company after 6 months and then we both formed a company and then we started working together. That's where the whole consulting business and entrepreneurship journey started. हमारे यहाँ जो लेबर काम करता है, अगर एक लेबर सीमेंट पे काम कर रहा है, सीमेंट से काम कर रहा है, मतलब सपोज वो एक दिहाड़ी मजदूर वाला बंदा है, वो अभी भी ना सीमेंट हाथ से मिला रहा है, उसके हाथ फट रहे हैं, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो ग्लव्स पहनेगा ना 5 रुपए के तो उसके हाथ बच जाएंगे, या फिर ऐसे छोटी छोटी चीजें जिससे लोगों को काफी हेल्प होगा, लेकिन चल रहा है, बस चल रहा है। वो रात को पेंट वाला बंदा जो है ना, वो अपने हाथ में पूरा पेंट पूरे दिन लगा रहा है, शाम को फिर वो बैठ के घिस रहा है वो हाथ अपने, वो ग्लव्स नहीं लगा सकता या वो कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं कर सकता। करते होंगे लोग, लेकिन अभी भी बहुत गैप है उसमें भी। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना जो कंसल्टिंग करियर शुरू किया इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट। I became a consultant of quality, safety, environment, and overall management of business. Because I realized in 3.5 years that I worked with big companies, I worked with mid-scale companies, I worked with a giant like Honda, I worked with the ancillaries of Honda, tier 1, tier 2 companies. And I realized that these people are careless about all these things because there is no regulation in our country who can actually take their pants off. Yeah. And then there's a business opportunity as well there. जब आप गैप देखते हो तो वहाँ पे तो आपका बिजनेस ही बन रहा है। तो वहाँ से फिर मैंने वो, क्योंकि because it's all about solving problems. So I thought, okay,
if not at a very large scale, at least I can start working with these micro, small and medium enterprises where I can really help them to build certain standards and all. तो उसी से हमने जब कंपनी मैंने फॉर्म करी, पहले 6-7 साल तो मैंने अपने बॉस के साथ मिलके हमने एज पार्टनर्स काम किया. 2006 में मैंने जब अपनी कंपनी फॉर्मलाइज करी, परसेप्शन बिजनेस कंसल्टिंग सॉल्यूशंस, तो उसमें फिर मैंने बहुत ही और गहराई से ऐसे सर्विसेज और ऐसे सॉल्यूशंस डिजाइन किए जिसमें हम ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें. एंड इट बिकेम a big business opportunity for me because मैंने कभी भी किसी के साथ कोई comparison नहीं किया. I was absolutely solo and I was really focused on that. I said, no, I have to do this work and I have to deliver my services to my clients. So वहाँ से फिर वो काफी pick up करना शुरू किया. 2005-2006 we started then making a good profit margins. तो अगर आज मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं. लेकिन प्रॉफिट के साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई टीच टुडे टू ऑल दीज MSMEs इज द इम्पैक्ट. व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू आर लीविंग ऑन पीपल, व्हाट यू मेंशन्ड राइट अवे. हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट जब आपने बोला कि मम्मी पापा अब मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कश्मीरी पीपल. तुम्हें तो अभी 3 ही साल हो गए भाई, क्या हो गया वैसा. So how did they react? No, it was a shock. Yeah. To at least I'm sure it will be a shock. It was a shock to my father. But I must tell you that it was my sister who convinced my father and who actually told my father because my father asked her, because she was, when we were both were bachelors in Delhi, so we were living together. आप बड़ी है बहन आपसे? नहीं, मेरे से छोटी है. Okay. 1-1.5 साल छोटी है. तो she actually convinced my father that let Bhaiya do whatever he wants to do. And then slowly and steadily, my father also realized that, he has to follow his own passion. Mm-hmm. Because I was getting an opportunity through my dad because he was in Jammu. He had his own influence there. He used to tell me, why don't you set up a plant? Let's have a manufacturing setup. You know everything about manufacturing. Why don't you set up a plant here? Well, let's do some business. I said, नहीं, मैं एक कंपनी में नहीं रहना चाहता. I don't want to limit myself in one company. I want to work with multiple companies. So proudly saying so that I have had an opportunity to work with many companies. So Yeah. having said that, 30 years back, 25 years back, the environment was totally different. Today we are in a different zone altogether in this modern world. But उस time पे ये decision लेना बहुत difficult था. But I'm proud to say that I took a right decision. I might not have made a lot of dollars and a lot of crores of rupees, but one great satisfaction is that I have impacted a lot of lives. On LinkedIn, you say you want to help 1,100,000 MSMEs to reach the target of like the scale and profitability. Let's talk about that. Okay, you see, when I started my entrepreneurial journey, as I said, that was year 1996, 97. I was not even married that time. In fact, I had resigned from my last job when I was not married. Acha. Right. So it was so early in my life. At 25, I was 25 and a half when I started my own solopreneurship. And then my boss joined me. So I started with MSMEs, micro, small, medium enterprises. उस टाइम पे कॉन्सेप्ट था MSME का? बिल्कुल था. Like मिनिस्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं. मिनिस्ट्री तो थी, बट इतनी एक्टिव नहीं थी. Oh. So इंडिया में 6.5 to 7 crore MSMEs रजिस्टर्ड है आज की डेट में, अगर मैं 2022 का डेटा लेता हूँ. So 6.75, 676 million, हम close to, मैं उसको बोलता हूँ close to 7 crore MSMEs are registered, right? जिसमें से 94 to 95% are micro. हाँ, 97% है. हाँ. Right. And another couple of percentage, 2% is small, and only 1.3% to 2% is medium. Which makes sense, yeah. Right. So now the potential is micro enterprise का potential बहुत ज़्यादा है because they are the real heroes of our country. Yeah. Who are actually the backbone basically. supply chain में सारे लोग हैं. Yeah. वही सब काम कर रहे हैं और वही actually employment बना रहे हैं. वही employment. है ना? हाँ. So this is the class. Let's talk about the micro. See, micro किस इसलिए important है क्योंकि वो 97-95% employment generate कर रहा है और इतना बड़ा देश है. दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कानपुर भी ले लिया, इंदौर भी ले लिया, ये सब बढ़िया जगह है तो ठीक है, लेकिन तब भी 85% भारत ऐसा है जहाँ पे अभी चीजें बहुत पीछे हैं.
राइट? सो और वो लोग 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं. आफ्टर एग्रीकल्चर, MSME इज द सेक्टर वेयर यू विल हैव सेकंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स. और उस MSME में से 97% माइक्रो कर रहा है, और उस 97 में से 50% रूरल इंडिया में है. जो अभी भी रूरल इंडिया में है, वो अभी भी रूरल ही है. लेकिन ऐसे ही एरिया में माइक्रो बिजनेसेस आ रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं. उनको हैंड होल्ड कैसे करेंगे? ये जो है ना, ये जो माइक्रो एंटरप्राइज का जो जोन है, इट्स अ वेरी टफ जोन. ऑफ कोर्स, यस, इट्स अ वेरी टफ जोन. हाँ. Every business coach will not get into this because there's no money there. Of course, there's no money there. Yeah. Because जो खुद स्ट्रगल कर रहा होगा वो आपको 99 रुपए का वेबिनार के लिए भी नहीं आएगा वो, क्योंकि उसको भी वो रैकेट दिखेगा. देखिए 99 रुपीज का वेबिनार, मैं वापस आऊंगा आपकी. बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल. 99 रुपीज का वेबिनार इसलिए करते हैं लोग, बहुत अच्छा है, मैं भी शायद आगे करूंगा. वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास क्वालिफाइड लीड्स आए, स्पैम ना आए. ओके, सो फिल्ट्रेशन. बट अगर मेरी फेसबुक पे एड चल रही है और इफ आई एम कॉलिंग आउट राइट पीपल इन माय राइट मैसेजिंग, इन माय कंपेलिंग मैसेजिंग, सो व्हाई शुड रिफ्रैफ कम टू मी? एंड इवन इफ दैट यू नो पर्सन कम्स who doesn't know anything about coaching, who doesn't know, but उसको मेरी बात समझ में आ रही है और वो जंप इन करके रजिस्टर करता है क्योंकि उसके पास एक ईमेल अकाउंट है. क्योंकि अगर ईमेल अकाउंट नहीं है, आपके पास फोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, तो शायद वो मेरे प्रोग्राम में एंटर नहीं कर पाएगा. बिल्कुल. बट कितने लोग रियल मैसेजेस देख पाते हैं फेसबुक पे, कि वो डिपेंड करता है कि वो क्या देखते हैं. ओके. तो ये जो माइक्रो एंटरप्राइज वाला जो जोन है, इनको सबसे पहले वहां तक पहुंचना इज ए टफ टेरेन. ठीक है, उन लोगों को वहां से बाहर निकालना इज ए टफ टेरेन. बिकॉज मैंने पिछले 3 साल में आई मस्ट हैव टच्ड अबाउट 11,000 प्लस पीपल फ्रॉम ऑन 2 प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. बिकॉज मैंने वेबिनार्स किए, बहुत सारे मास्टर क्लासेस करी. MSME X इज वन ऑफ देम एंड बड़ा बिजनेस इज अनदर वन. डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, आई बीन देयर. और भी मैंने 1-2 वाधवानी फाउंडेशन है, मैं इनका सबका नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि these people gave me an opportunity to be online because they found me on LinkedIn, they found me on my social media handles, they approached me and they onboarded me there. मेरा एक ही सवाल इनसे होता था कि माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज को हम कैसे लेके आए. तो जितने भी मेरे पास लोग आते थे वो सब माइक्रो और स्मॉल वाले ज्यादातर आते थे. जो मीडियम वाले थे, जो 100 करोड़ के ऊपर थे या 50 करोड़ के ऊपर, वो मेरे को सुनते तो थे लेकिन मेरे प्रोग्राम में नहीं आते थे इनिशियली, या मेरे वेबिनार में नहीं आते थे, या आज भी नहीं आते हैं. लेकिन जो आते हैं वो मेरे को अलग से मैसेज करते हैं. They don't have time to come to my webinar, but they give me a separate message through LinkedIn or through my messenger or something. So I get leads from there also. We call this as a organic lead. If a company or if a founder comes to you and says कि I need a handholding and I want to scale or I want to see growth in my company, और हमको चीज बता दो, कंसल्ट करो हमको, या whatever है ना, हमको हेल्प करो. So is it percentage you charge? Is it a flat fee? Is it per resource? कैसे होता है इसका, like financial transaction कैसे होती है? See, typically what happens is जो consulting है वो coaching से थोड़ी different होती है. Correct. Consulting is basically more of you're actually hand-holding a company to achieve their goals. Let's say consulting के बारे में बात करते हैं. So consulting बहुत simple है. आप एक पहले तो आप scope of work define करते हैं. पहले आप डायग्नोस्टिक, मेरा अपनी कंपनी में शुरुआत से 2005 से DTN अप्रोच रहता है, डायग्नोज, ट्रीट एंड नर्स. आप पहले डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसको ट्रीट करते हैं. करेक्ट. प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ट्रीट करते हैं. अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करते हैं. किसी को निकालना है तो निकाल देते हैं. Correct. आपको हायरार्की में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो कर देते हैं. और फिर आप उसको नर्सिंग करते हैं. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट होता है, ये मिनिमम 6 महीने से 12 महीने का होता है. Okay. Typically, because आप कोई भी चेंज किसी भी कंपनी में 3 महीने 6 महीने में नहीं ला सकते. Correct. तो मिनिमम 6 months to 12 months का होता है. And then we decide a certain amount which I calculate on our mandates. जितने भी experts उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उस engagement पे काम करेंगे, उसके हिसाब से वो किस लेवल का एक्सपर्ट है. विनोद पंडित है तो वो पर मैन डे, पर डीएम कितना चार्ज करता है, व्हाट इज माय पर डीएम. तो बेसिकली वी आर ट्रांजैक्टिंग अगेंस्ट आवर टाइम.
You know, Okay. right? So it's per resource, like a resource working for particular hours in that company, उस हिसाब से उस multiply. हिसाब से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है. Okay. और उस हिसाब से फिर आप एक लमसम फीस कैलकुलेट करते हैं और फिर आप प्रपोजल देते हैं कि हम आपसे इतना पैसा चार्ज अच्छा, so it is one time lump sum पैसा होता है generally. हाँ, जनरली होता है, एक टाइम फिक्स होता है, उसमें फिर कुछ एडवांस होता है, फिर कुछ हाँ, वो अलग है, वो अलग है. So the figure is basically multiples of resources per hour. सिंपल मोटा मोटा. अच्छा, it's not percentage और ऐसा कुछ नहीं. नहीं, परसेंटेज सक्सेस मनी का होता है. अगर मान अच्छा, लीजिए ऐसा भी है. अगर मान लीजिए मैंने एक प्रपोजल दिया आपको एज अ हाँ, क्लाइंट, हाँ. आप मेरे को बोलेंगे यार विनोद दिस इज टू हाई, आई कैन नॉट अफोर्ड यू, बट आई वांट टू वर्क विद यू. A lot of clients who tell me this. तो आपने क्विटिंग मांग ली. So फिर हम क्या करते हैं, हम फिर प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉफिट जो उनको हम बना के देते हैं ओवर एंड अबाउ फ्रॉम टुडे, तो हम क्या बेसलाइन लेते हैं, ठीक. वहां से जो भी प्रॉफिटेबिलिटी वो एक साल में अचीव करते हैं, ठीक. एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन अ 6 monthly basis, we charge a certain percentage of that. ठीक. So it's a very small percentage, but if you really make a change, तो क्या होता है, retainership या lump sum money is becomes small, the Percentage. success money becomes a good money. Yeah. So तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि नहीं भैया मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, मैं परसेंटेज पे काम करता हूँ, इससे मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ. एक होता है, देखिए, Isn't that a good deal for you? A better it's deal? a very good deal. We have made those kind of deals. But क्या होता है, इंडियन मेंटालिटी, एंटरप्रेन्योर्स मेंटालिटी ये है कि जब वो एक बार, दो बार, तीन बार देता है तो वो थोड़ा लालची हो जाता है. Correct. तो वो फिर क्या करता है, वो बुक्स में फिर लॉस दिखाना शुरू करता है कि बॉस हमारे को तो लॉस हो रहा है. तो मैं फिर जब इन्वेस्टिगेट करता हूँ एज ए डॉक्टर, हाँ, वही मैं तो. बोलता हूँ कि यार लॉस तो नहीं है, बट दे ट्राई टू प्रूव थ्रू देयर जुगाड़. तो वो फिर it becomes a very, it doesn't become a very healthy relationship. वो So weird हो जाता है. I don't get into that. Okay. ऐसे okay fine, this is what it is. तो जहाँ पे होता है वहाँ करते हैं, जहाँ नहीं होता है वहाँ पे हम बोलते हैं कि ठीक है, जैसे चलना है वैसे चलते रहो, because ultimately the whole objective is, the ultimate objective is to help him to get out of that stucky situation, you know, that challenge which he is facing. जो हमारी आईटी कंपनीज है, दे सुपर बिग है ना, टीसीएस है, इन्फोसिस है और ये सब, मतलब लाखों करोड़ का टर्नओवर कर लिया है और ये सब, बट अभी भी ये सर्विसेज ही दे रहे हैं बड़े लोगों को ज्यादातर. ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे कंट्री में उबर बन रहा है, हमारी कंट्री में ट्विटर बन रहा है, हमारी कंट्री में फेसबुक बन रहा है, हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स. एक तो माइंडसेट की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, रिसर्च नहीं है, वी आर नॉट रिसर्च ओरिएंटेड बिकॉज वी डोंट हैव ए इकोसिस्टम ऑफ रिसर्च दैट एक्सटेंट बाहर यूएस में. क्योंकि आप देखिए दोनों जगहों में, इंडिया में और बाहर, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये है लाइफस्टाइल का. बिकॉज हम अभी भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बहुत सारे क्लासेस हैं हमारे यहाँ पे, कोई क्लास नहीं है. 18 साल के बाद बच्चा जो है वो इज इंडिपेंडेंट, वो अपनी क्लास खुद बनाता है, ही इज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, यू नो. बट यहाँ पे आज हमारा बच्चा है, उसको जब तक वो जॉब नहीं उसकी लग जाती है तब तक हम उसके पीछे होते हैं और हमें पूरा सपोर्ट करना होता है. दैट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस फील्ड से मैं आता हूं, दैट इज क्वालिटी माइंडसेट. हमारा क्वालिटी ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं है. हमें लगता है कि परफेक्शन जो है, आजकल क्या सिखाते हैं कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. हाँ. तो परफेक्शनिस्ट होना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है. आप फिनिकी नहीं आप हो जाओ, दैट शुड नॉट अफेक्ट योर वर्क, बट इफ यू डोंट थिंक स्टैंडर्ड, इफ यू डोंट थिंक क्वालिटी, इफ यू डोंट really work with that mindset, you will not be able to create quality product, world class product जिसको हम बोलते हैं. आज मेरे को भी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास इकोसिस्टम ही नहीं. करेक्ट. मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आई हैव स्टार्टेड विद अ ग्रेट नोट विद वन एजेंसी, एंड आफ्टर 3 months that agency was the most unreliable, unrealistic, fly-by-night operator agency, which was not in the beginning, but later they proved it, or maybe they have the outsourced teams जो काम कर रहे हैं, but उनके value systems aligned नहीं है. You as a customer, you suffer that. तो world class products बनाने के लिए वो mindset आना जरूरी है, but ये बहुत छोटा परसेंटेज है. एक ऑर्गेनाइज, हमें इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. इकोसिस्टम जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. वो आप अपनी फैमिली में भी देखिए, आप बाहर भी देखिए. आप जब तक वो माइंडसेट लेके नहीं आएंगे तब तक आप क्वालिटी प्रोडक्ट या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बना सकते. ओके. सो
व्हाट इज बिजनेस टर्न अराउंड कोच? उसका क्या मतलब होता है अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें उसको, कि आप एक बिजनेस टर्न अराउंड कोच भी है, क्या इसका मतलब होता है कि जब व्हेन अ बिजनेस वांट्स टू पिवट तो Yes. सो कैन यू टॉक अबाउट इट लाइक फॉर या बिजनेस टर्नअराउंड होता है कि कोई कंपनी जब एक लेवल पे पहुंचती है, एक फाउंडर उसको 30-40 साल से एक लेवल पे लेके आता है, मान लीजिए वो आज 0 से 25 करोड़ पे आ गया और अब उसको कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है आगे, स्टैग्नेशन आ गई बेसिकली, स्टैग्नेशन आती है बिकॉज ही इज सो ऑब्सेस्ड विद हिज मॉडल। या कि मैंने बनाया मैं। तो एक तो उसको छोड़ने का डर होता है, ब्रांड रीइंफोर्स करने का डर होता है। वो कहता है कि ये तो मैंने बनाया था, तो दूसरे के हाथ चला जाएगा, मेरी सेकंड जनरेशन के हाथ चला जाएगा। तो वहां पे टर्न अराउंड कोच की जरूरत पड़ती है, जो ट्रांजिशन लेके आता है फ्रॉम दिस स्टैग्नेशन टू मेक दिस 25 crore company 100 crore company is my specialization, I would say. And I want to tell you on this podcast that is my specialization, and I have done it 50 plus times in my last 15-20 years of career. And ये छोटा मोटा टर्न अराउंड नहीं था, ये 10-20 करोड़ की कंपनियों को हमने 150 करोड़ तक भी मैं लेके गया हूँ। ओके, ऑसम। in a period of probably 7 years to 15 years, because मेरे जो आज 2002 के क्लाइंट्स हैं, जो उस टाइम पे 4 करोड़ के थे, आज वो बड़े हो गए, 400 करोड़ के हो गए। 10 करोड़ की कंपनीज आज की डेट में 200 करोड़ की कंपनीज हो गई हैं। करेक्ट। देयर इज अ स्टील कंपनी इन साहिबाबाद, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, जो जब मैं उनके साथ था, that company, it's not that I have done everything, but I was You were that part time, of this. Yeah. I was part of that turnaround that time. Yeah. That 40 crore company today is a 1200 crore company in last 12 years. Wow. Why? Because they pivoted because of one reason, because we gave them an exposure that if you want to be a global market leader, you have to adopt global standardization. So they went to all those international standardization or the certifications which were necessary for them that time. And they just turned around. और आप 3-4 साल में उस कंपनी ने 40 करोड़ से 80 करोड़, 80 करोड़ से, मतलब 4-4 साल में 5x ग्रोथ। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में नेक्स्ट कौन सा सेक्टर है या कौन सी इंडस्ट्री है जो बूम करेगी अगले 8-10 साल में? अब इस जनरेशन को क्या करना है ताकि they will be all sorted when their next 8-10 years they'll come out in the industry, in the market for jobs? जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा और आएगा। AI will take over, machine learning will take over, all these new technologies will take over. Traditional businesses will remain traditional. जो गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी रहेगी। अब सिर्फ ये है कि डीजल से वो पेट्रोल से वो फिर BS6 में और BS6 से आप इलेक्ट्रिक में आ गई। तो वो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, लेकिन उसका जो बॉडी है, उसका जो शीट मेटल है, उसका जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग है, वो सेम रहेगा। करेक्ट। एक तो वो सेक्टर है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर तो रहेगा। दूसरा, अगर मैं आऊं तो जो IT था पहले, फिर सॉफ्टवेयर हुआ, अब डिजिटल बोलते हैं उसको। सो डिजिटल सेक्टर नाउ, डिजिटल जो है दैट इज द फ्यूचर। डिजिटल में सब कुछ आता है। करेक्ट। यू हैव टू बी ऑनलाइन, यू हैव टू बी देयर, ई-कॉमर्स फॉर एग्जांपल, वीडियो, courses, learning, everything. This is going to boom because it's a big $1 billion industry. Education industry. Second is service sector. आप service sector में आप like crores of revenue is generated by today also in India in service sector. चाहे वो healthcare हो, चाहे hospitality हो. बिल्कुल। तो the moment you put the digital to everything, you put video to everything, you put e-commerce to everything, every sector will become a opportunity for tomorrow. अब हम लोग for some time we'll talk about the community. वो सबसे पहले मेरे लिए बहुत important था। Interesting. हाँ, पहला मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है कि we are not clear about our vision as a community. अगर हम बोलते हैं कि हमें कश्मीर वापस जाना है, तो यहाँ से दूसरा एक सेट ऑफ पीपल होगा कि भाई वहां पे क्या करेंगे हम लोग। एंड वो एक सच्चाई भी है, लेकिन हमें क्लेम नहीं छोड़ना है। हमें वहां पे विस्थापित लोगों को वापस जाना है। वी हैव टू गो बैक टू आवर प्लेस